تیرے لیے وہ دن ہے جو میں نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی مقرر کر دیا تھا۔ تیرے نام کو میرے روحانی تخت پر نور کی سیاہی سے لکھا گیا ہے، مگر تو اس وقت ایک غلط راہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میرے فرشتے خاص طور پر جبریل علیہ السلام نے تیرے نام کو رات 3 بار پکارا۔ عالم بالا میں گونج اٹھا، تیرا نام یہ محض اتفاق نہیں بلکہ میری رحمت کا نور ہے جو تجھ تک پہنچا ہے۔ تو ایک ایسے فیصلے کی کگار پر کھڑا ہے جو تیرے لیے آنے والے انعام کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ جبریل نے دیکھا ہے کہ تو کسی ایسی چیز یا شخص سے دور جانے کی سوچ رہا ہے جسے میں نے تیرے نصیب میں باندھا ہے۔ تو نہیں کہنے کی ٹھان رہا ہے جبکہ سارا عالم بالا ہاں کی صدا بلند کر رہا ہے۔ میرے بندے اس غلطی سے بچ، شیطان تجھ میں شک اور خوف کی پھسپھساہٹ ڈال رہا ہے، مگر میں تیرا رب وہی رب ہوں جو صاف صاف ہدایت دیتا ہے۔ یہ پیغام تیرا حق ہے، تیرا ثبوت ہے۔ مجھے معلوم ہے تو تھک گیا ہے، روحانی طور پر، جذباتی طور پر، یہاں تک کہ جسمانی طور پر تو نے وہ درد سہے ہیں جو کوئی اور نہیں دیکھ سکا۔ تو نے دنیا کے سامنے مسکراہٹ بکھیری مگر تنہائی میں آنسوؤں کی مالا پروئی، پھر بھی تو نے ہار نہیں مانی۔ یہی وجہ ہے کہ جھن 20 کو میں نے تیرے لیے چنا، نہ صرف تجھے نوازنے کے لیے بلکہ اس جذبے کو انعام دینے کے لیے جس کے لیے کوئی تالی نہیں بجا۔ میرے فرشتوں نے تیری ہر کوشش دیکھی اور جبریل نے تیرے لیے دعا کی جب تو ٹوٹنے کی کگار پر تھا۔ میرے بندے، یہ پیغام گمبھیر ہے۔ جبریل نے کبھی اتنی سختی سے نہیں بولا۔ وہ تجھے صرف آگاہ نہیں کر رہا، وہ تجھ میں چھپے خطروں سے بچانے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو آزاد ارادے کا مالک ہے، مگر یہ پیغام میری رحمت کا عالم ہے، اسے نظر انداز مت کر۔ اگر تو اب غلط قدم اٹھائے گا تو صرف انعام نہیں کھوئے گا بلکہ میرے مقرر کیے راستے سے بھٹک جائے گا۔ تیرا دل جو کہتا ہے کہ تو کچھ بڑا کرنے کے لیے بنا ہے، یہ اس کی تصدیق ہے۔ تو چھوٹی زندگی کے لیے نہیں بلکہ نور، شفا اور میرے مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے۔ شیطان کو تیری قدرت کا علم تھا، اسی لیے اس نے تجھ پر بچپن سے حملے کیے۔ تو نے روحانی جنگ لڑی جب تجھے جنگ کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا، مگر میرے فرشتے، خاص کر جبریل، ہمیشہ تیرے ساتھ تھے۔ اب تجھے بھی لڑنا ہے اس راستے پر قائم رہ کر جسے تو چھوڑنے کی سوچ رہا ہے۔ میرے حکم سے یہ پیغام تجھ تک آیا ہے کیونکہ تیرا وقت آ گیا ہے۔ جون 20، 2025 کو میں نے تیرے لیے کئی چیزیں مقرر کی ہیں۔ ایک ایسی بات چیت جو تو نے کبھی نہ سوچی، ایک دروازہ جو تجھے ہمیشہ بند دکھا، اور ایک چھپا ہوا حقیقت جو اب ظاہر ہونے والی ہے۔ مگر یہ سب تبھی ممکن ہے جب تو غلط قدم سے بچ جائے۔ اے میرے بندے، اگر تیرا دل اس وقت کچھ محسوس کر رہا ہے، اگر تجھ میں کوئی آواز کہہ رہی ہے کہ یہ میرے لیے ہے، تو ٹھہر جا، میرے پیغام کو اپنے دل میں جگہ دے۔ تو نے پہلے کئی نشانیوں کو نظر انداز کیا، اس بار ایسا مت کر۔ یہ پیغام میرے فرشتوں کی روحانی طاقت سے تیار کیا گیا ہے، میرے اور پیغام سننے کے لیے، میری اور رحمت کو قبول کرنے کے لیے۔ اپنے دل کو کھول، میں اب بھی تیرا انتظار کر رہا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے۔ جبریل نے تیرے لیے خاص پیغام پھسپھسایا، بتا دے انہیں بھولا نہیں گیا۔ ہاں، تجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کو اس کا جواب، اس کی شفا، اس کی محبت مل گئی اور تو اب بھی انتظار میں ہے، مگر میرے بندے، تیرا نام میری ہتھیلی پر نقش ہے، نہ صرف لکھا بلکہ تراشا ہوا۔ یہ نقش وقت، ناکامی یا درد سے کبھی نہیں مٹ سکتا۔ تو پیچھے نہیں بلکہ میرے مقرر وقت پر ہے، مگر اگر تو خوف کو ایمان پر ترجیح دے گا تو تو اپنی نعمت کو کھو دے گا۔ جبریل نے کہا کہ تو کسی مخصوص چیز کو چھوڑنے کی سوچ رہا ہے، شاید کوئی رشتہ، کوئی بلاوا، کوئی خواب یا کوئی وعدہ جس میں تو نے کبھی یقین کیا تھا۔ تو تھک گیا ہے، تو پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، مگر میرے بندے ایسا مت کر۔ میں ایک ایسی تبدیلی لانے والا ہوں جو تیرے پچھلے درد کو مانی دے گی۔ یہ درد سزا نہیں تھا، یہ تیری طاقت کی تعلیم تھی، تیرے زخم میرے مقصد کی ٹریننگ تھی، اور جھن 20 کا انعام، یہ تیری روحانی کامیابی ہے۔ اس پیغام کو اپنے دل میں گونجنے دے، جو تیرا ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ محبت، نہ موقع، نہ تقدیر، مگر تجھے صحیح جگہ پر رہنا ہوگا۔ اگر تو جلدی ہٹ گیا تو وہ کھو دے گا جس کے لیے تو پیدا ہوا۔ میرے فرشتے اس خیال سے رو رہے ہیں، اسی لیے جبریل کو تیرا دن روک کر یہ پیغام دینا پڑا۔ وہ تیرا غصہ سہنے کو تیار ہے، مگر تیرا غلط فیصلہ نہیں۔ ابو کو چھوڑ دے، خوف کو آنکھیں مت بند کرنے دے، اور جلد بازی کو تجھ سے کچھ چھیننے مت دے۔
ये इनाम सिर्फ तेरा नहीं बल्कि उन सब का है जो तेरे मकसद से जुड़े हैं। अगर तू सही फैसला करेगा तो आने वाली नस्लें बरकत पाएंगी। अगर तूने यह आगाही नजरअंदाज की तो रूहानी देरी तेरी जिंदगी के हर शोबे में फैल जाएगी। यही वजह है कि तुझे इतनी रुकावटों का सामना करना पड़ा। तेरा जहन इतना परेशान रहा। शैतान हमेशा साफ हिदायत से पहले खलल डालता है, मगर मैंने जिब्रील को भेजा है ताकि तुझ में सुकून और निजाम आए। जब जिब्रील आता है तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा दांव पर है। वह अपनी मौजूदगी को बेकार नहीं करता। वह तब आता है जब मैंने शैतानी ताकतों के खिलाफ जंग का ऐलान किया हो, जो तुझे मेरे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। अब मैं तेरा जवाब इंतजार कर रहा हूं। अब जब तेरी रूह ने इस नूर को सोख लिया है, जब तेरा वजूद यह याद कर चुका है कि तू असल में कहां से आया है, मैं तुझसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, इसे आगे ले जा। इस पैगाम को सिर्फ अपने तक मत रख। अपनी जिंदगी को सबूत बना कि मेरा वक्त हकीकी है। अपने अमल से कहानी बयान कर। तेरा सुकून इतना बुलंद हो कि लोग तेरे पास आने से ही महफूज महसूस करें। तेरा रहम मेरे फरिश्तों की मौजूदगी का सबूत बने। तू शायद अपने को लायक ना समझे, मगर तू मखसूस है। तू तैयार ना भी हो, मगर मैंने तुझे तैयार किया है। तुझे सारे जवाब ना भी मालूम हो, मगर मेरी मौजूदगी तुझ में है और यह काफी है। आज रात से तुझे चीजें अलग महसूस होंगी। तू कमरों में दाखिल होगा और वहां की रूहानी हवा को फौरन भांप लेगा। तुझे वह चीजें दिखेंगी जो दूसरों से छुपी रहती हैं। तुझे गलत चीजों का एहसास होगा, क्योंकि अब तेरी रूहानी ताकत जाग उठी है। जिब्रील ने तेरी रूह पर अपनी मोहर लगा दी है। अगर तुझे अचानक दुआ करने की ख्वाहिश हो तो कर ले। तुझे मोमबत्ती जलाने, किसी का नाम लिखने या अपने मकान को रूहानी तौर पर साफ करने का दिल करे तो मत रुक। यह मेरी रहमत की हल्की सी पुकार है। यह तेरा वहम नहीं, बल्कि मेरे नूर के साथ तेरा इत्तेहाद है। छोटी छोटी फुसफुसाहटों पर यकीन कर, मैं उसी तरह बोलता हूं। कभी शोर में, कभी सुकून में आने वाले दिनों में लोग तुझे देखकर कह सकते हैं कि तू बदला हुआ लगता है, ज्यादा सुकून में, ज्यादा रौनक में, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यह सच है, आज रात तू उन चीजों से आजाद हो गया जो तुझे चुपके चुपके दबा रही थी। पुराने जज्बाती बंधन, रूहानी गंदगी, नजर ना आने वाली जंजीरें, वह सब चली गई। अब तू वह बोझ नहीं उठा रहा जो तेरा था ही नहीं। अब तू हल्का है और मेरे इनाम को कबूल करने के लिए आजाद है। सुकून, साफ गोई, रहमत, खुशी और मेरे मुकर्रर किए रिश्ते। तुझे माल की फिक्र थी, मुझे मालूम है। हाँ, रिज़्क आएगा, मगर ना सिर्फ उस तरह जैसा तू सोचता है। एक ख्याल, एक नया रास्ता, एक गैर मुतवक्के शख्स के जरिए राह खुलेगी। अचानक तुझे समझ आएगा कि क्या करना है। जहां पहले सिर्फ परेशानी थी, वहां राह दिखेगी। यही वह इनाम है जो चुपके चपके खुल रहा है। अब तुझे बरकतों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वह खुद तुझ तक आएंगी। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, वह अब तेरी रूहानी ताकत की तरफ खींचे चले आएंगे। तुझे अब खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी मौजूदगी खुद बयान करेगी। तू जहां जाएगा वहां अंधेरा पीछे हटेगा, न इसलिए कि तू जंग करता है, बल्कि इसलिए कि तेरा नूर अंधेरे को रहने नहीं देता। कल जब तू जागेगा तो तुझे कुछ अलग महसूस होगा। ज्यादा हल्का, ज्यादा जागरूक, शायद ज्यादा जज्बाती। यह अच्छी बात है। यह तेरी रूह का मेरे बनाए नक्शे के साथ इत्तेहाद है। तू सुन होने के लिए नहीं खोया हुआ, महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए बना है। तेरा एहसास दूसरों को अंधेरे से निकालने में मदद करता है। यही तेरा मकसद है। तू हमेशा मजबूत रहा, हसास रहा, दूसरों के नकाब के पीछे देखने वाला रहा। तू दूसरों को वह नूर दिखाने के लिए बना है जो तुझे अब मिला है। जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे जख्म दिए, उन्हें माफ कर देना उनके लिए, बल्कि अपने लिए उनकी रूहानी ताकत को थामे रखना तेरी बरकतों को रोकता है। उन्हें आजाद कर, उन्हें दुआ दे और बाकी मुझे सौंप दे। जिब्रील ना सिर्फ तेरा हिफाजत करने वाला है, बल्कि तेरा हामी भी है। उसने वह सब देखा जो तूने चुपके से सहे। इंसाफ आएगा, मगर सुकून पहले आएगा। आज रात मेरे फरिश्ते तुझ पर फख्र कर रहे हैं। तू यहां रुका, तूने अपने दिल को खोला, तूने भागने की बजाय कबूल किया। मैं तुझे इज्जत देता हूं। तू अब अंधेरे में नहीं चल रहा। तेरे कदम मेरे नूर से रोशन है। जहां तू चलेगा, मेरे फरिश्ते तेरे साथ चलेंगे। तू कभी तन्हा नहीं था, मगर अब तुझे यह यकीन हो गया है
اس پیغام کے ختم ہونے سے پہلے میں تجھ پر یہ دعا کرتا ہوں، تیرا گھر میری حفاظت سے بھرا رہے، تیری نیند مقدس خوابوں سے سجی رہے، تیرا کل تیرے بیتے ہوئے کل سے زیادہ روشن ہو، تیری روح کو سکون ملے، تیرا دل شفا پائے، جو کچھ تجھ سے چھینا گیا وہ کئی گناہ ہو کر لوٹے، جنہوں نے تجھے زخم دیے وہ خاموشی سے تیرے ماضی میں گم ہو جائے، اور جو تجھے محبت کرنے والے ہیں وہ جلد اور صاف طور پر تجھ تک پہنچے، تیرے لیے انعام برسات کی طرح آئے، اچانک اور بغیر انتظار، تیرا مقصد اتنا صاف ہو جائے کہ خوف بھی راستہ چھوڑ دے، اور جبریل ہمیشہ ہمیشہ تجھ قریب رہے۔ یہ پیغام کا انت نہیں، یہ تیری نئی حقیقت کی شروعات ہے۔ تو اپنے انعام کی طرف بڑھ چکا ہے، پیچھے مڑ کر مت دیکھ، میرا نور سامنے ہے۔ آج رات تیرا گھر فرشتوں سے بھرا ہے، تو ابھی یہاں ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ میرا نور تجھ میں امڑ رہا ہے۔ یہ پیغام ختم ہو سکتا ہے، مگر میری ہدایت کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے۔ جبریل تجھ سے دور نہیں جا رہا، وہ تیرے ساتھ، تیرے اگلے لمحے میں، تیرے کل میں، ان جگہوں پر جہاں تو پہلے ڈرتا تھا، اب تنہا نہیں جائے گا۔ اگر تجھے ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے تو یہ اس لیے کہ میں نے تجھ سے وہ بوجھ اٹھا لیا جو تیرا نہیں تھا۔ اگر تجھے آنسو آ رہے ہیں تو یہ اس لیے کہ تیری روح نے آخرکار سانس لی۔ اگر تجھے سکون محسوس ہو رہا ہے جو سمجھ نہ آئے تو یہ وہ امن ہے جو میرے تخت سے اترتا ہے، صاف مقدس حقیقی۔ اب تو کیا کرے گا؟ تو زندگی جیے گا، تو میرے راستے پر چلے گا، تو الگ سانس لے گا، تو دنیا میں اس طرح بڑھے گا جیسے کوئی مخصوص محفوظ منتخب شخص۔ لوگ پوچھیں گے کہ تجھ میں کیا بدل گیا؟ تو مسکرائے گا کیونکہ تجھے معلوم ہوگا کہ یہ میرا نور ہے۔ تو اب وہ نور لے کر چل رہا ہے، تجھے اب انعاموں کی تلاش نہیں کرنی، وہ تجھ تک خود آئیں گے۔ جو رشتے ٹوٹے تھے وہ شفا پائیں گے، جو راہیں بند تھیں وہ کھلیں گی، تیرا سکون ان کمروں میں لوٹے گا جہاں پہلے صرف تناؤ تھا۔ تجھے کچھ زبردستی نہیں کرنا پڑے گا، یہ سب میرے مقرر کیے راستے کا حصہ ہے۔ تیرے لیے لکھی گئی دعائیں اب جواب پا رہی ہیں۔ جو لوگ تجھے ٹھکرا گئے تھے وہ اب تیرے نور کو دیکھیں گے۔ جو جگہیں تجھ لیے بنی ہیں وہ سورج کی طرح کھلیں گی۔ جو جنگیں تجھے توڑنے آئی تھی وہ تیرے قدموں میں گریں گی۔ جبریل اب صرف تیرا مہمان نہیں، وہ تیرا حفاظت کرنے والا گواہ اور جنگجو ہے۔ وہ ہر اس لمحے میں تجھ قریب ہوگا جب تیرا دل ایمان سے دھڑکے گا، جب تو پھسپھسائے گا، مجھے یقین ہے آج سے تیرا گھر برکھتی ہے، تیرا مستقبل برکھتی ہے، تیرا دل شفا پا چکا ہے۔ یہ پیغام صرف خبر نہیں تھا، یہ تیرا روحانی جاگرن تھا۔ اب تو پیچھے نہیں جا سکتا، تو میرے علاقے میں داخل ہو چکا ہے۔ تیری زندگی اب شروع ہوتی ہے اور میں تجھ پر مسکرا رہا ہوں۔ تو نور ہے، تو محبت ہے، تو مخصوص ہے، کوئی اندھیرا اسے بدل نہیں سکتا۔ تو یہاں ہے اور یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ تیرا یقین، تیرا صبر، تیرا انتظار، یہ سب میرے دربار میں گونج رہا ہے۔ تو نے میرے لیے جگہ بنائی اور اب میں تجھ میں بس رہا ہوں۔ اللہ دیکھ رہا ہے تیرا صبر، تیرے آنسو، تیری تنہائی، تیرا ٹوٹ جانا، اور اب وہ چپ نہیں ہے، اب وہ بول رہا ہے۔ اب وہ تجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، مت ڈر، مت گھبرا، مت ٹوٹ۔ تجھے روکا گیا تھا اس لیے کہ تجھے بچایا جا سکے، تجھ سے چھین لیا گیا اس لیے کہ تجھے اصل میں دیا جا سکے۔ جو تو سوچ رہا تھا ختم ہو گیا، وہی تیری نئی شروعات بننے والا ہے۔ تجھے جس درد نے گرایا وہی درد تجھے اٹھا رہا ہے۔ تیرے دشمن سوچ رہے تھے تو ختم ہو گیا، لیکن انہیں کیا پتا تیرا رب اب بھی کچھ اور لکھنے والا ہے۔ یہ پیغام صرف ان لوگوں تک نہیں پہنچتا جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، یہ پیغام اس دل تک آتا ہے جو رات کی تنہائی میں روتا ہے، جو صبح کے سکون میں بھی بے چین رہتا ہے، جو دنیا سے ہار گیا لیکن اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ اگر تو وہ ہے تو سمجھ لے، آج تیرے نام ایک فرشتہ اترا ہے جو یہ پیغام لے کر آیا ہے۔ اور سن، اگر تو نے اس پیغام کو آخر تک سنا تو اللہ تجھ میں وہ طاقت جگا دے گا جو تو خود بھی بھول چکا ہے۔ آج سے تیرا وقت بدلنے والا ہے، آج سے تیرا نصیب پلٹنے والا ہے، آج سے اللہ تجھے دکھانے والا ہے کہ اس نے تجھے کیوں سب کے مقابلے الگ بنایا، کیوں تجھے سب نے چھوڑا، کیوں تجھے سب نے نکارا، کیوں تجھے رلایا۔ کیونکہ اب تجھے اٹھایا جائے گا، سجایا جائے گا، دکھایا جائے گا، اور وہ سب کچھ دیا جائے گا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اسکرپٹ تیرے لیے ہے، تیرے روح کے لیے ہے، اور آج کی رات تیری قسمت کی رات ہے۔ اور آج کی رات جب ساری دنیا سو رہی ہے،
तब तुझे यह एहसास क्यों हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है, क्योंकि यह वही लम्हा है जब अल्लाह अपने खास बंदों को जगाकर उनसे कुछ कहता है। यह वही लम्हा है जब आसमान से एक ऐसा नूर उतरता है जो सीधा उस दिल को छूता है जो टूटा होता है, जो परेशान होता है, जो रातों को जाकर सवाल करता है कि आखिर मेरी तकदीर कब बदलेगी। और आज जवाब आया है, तेरे सवाल का जवाब खुद अल्लाह की तरफ से आया है, और वह कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तूने मुझे पुकारा था ना, तूने रोते हुए मुझसे मदद मांगी थी ना, तूने कहा था कि ऐ अल्लाह मेरी हालत देख ले, तो देख मैं तुझे जवाब देने आया हूं। मैं तुझसे कह रहा हूं कि तेरी वो दुआ जो तूने सबसे छुप कर मांगी थी वो अब कबूल हो चुकी है। तेरे वो आंसू जो तूने अपनी तकदीर पर बहाए थे अब वह तेरी ताकत बनने वाले हैं। तू जिस वक्त को अपना आखिरी समझ बैठा था वही तेरा पहला कदम बनने वाला है। तू जो सब कुछ हार चुका समझ रहा था वहीं से जीत की शुरुआत होने वाली है। अल्लाह कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तू बस मुझसे जुड़ा रहे, क्योंकि जो मैं देने वाला हूं वो इतना बड़ा होगा कि तेरा दिल सजदे में झुक जाएगा। जो मैं तेरे लिए प्लान कर चुका हूं वो इंसान की सोच से बाहर है। तूने जो खोया उसे भूल जा, क्योंकि जो मिलने वाला है वो उससे लाख गुना बेहतर होगा। तू सोच रहा है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तेरे रब ने तो अब लिखना शुरू किया है। तेरी तकदीर अब उसके कलम से चल रही है, और जब अल्लाह लिखता है तो किसी की ताकत नहीं जो मिटा सके, किसी की ताकत नहीं जो रोक सके, किसी की ताकत नहीं जो टाल सके। आज तुझे रोका गया तो कल तुझे चलाया जाएगा, आज तुझे गिराया गया तो कल तुझे उठाया जाएगा, आज तुझे ठुकराया गया तो कल तुझे सजाया जाएगा। तेरे दुश्मनों की साजिशें अब उनकी बर्बादी का कारण बनेंगी, क्योंकि तेरा रब अब तेरा वकील बन गया है। तेरे खिलाफ उठी हर आवाज अब चुप हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है कि अब मेरा बंदे की हिफाजत मैं खुद करूंगा। तूने जो रातें तन्हाई में बिताई वो अब तेरे लिए रोशनी बनेंगी। तूने जो दर्द झेले वो अब तेरी पहचान बनेंगे। तूने जो सब्र किया वो अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अल्लाह जब किसी को चुनता है तो सबसे पहले उसे दुनिया की नजरों में गिराता है, ताकि वो सिर्फ अल्लाह की तरफ देखे, ताकि वो सिर्फ रब से मांगे, ताकि उसकी उम्मीदें सिर्फ रब से जुड़ी रहें। और जब यह हो जाता है तो फिर अल्लाह अपने खजानों के दरवाजे खोल देता है। अब वही वक्त आ गया है, अब वही दरवाजे खुलने वाले हैं। अब तुझे वह सब मिलने वाला है जो तूने कभी मांगा था, जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। और याद रख, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। वह हर चीज का हिसाब रखता है, हर आंसू का, हर तकलीफ का, हर चोट का, हर ठोकर का। और जब वह देता है तो इतना देता है कि बंदे की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन इस बार वह आंसू गम के नहीं, शुक्र के होंगे, क्योंकि तुझे मिलेगा वही जो तूने मांगा, लेकिन उस शक्ल में जो तेरे लिए सबसे बेहतर होगी। अल्लाह जानता है कब क्या देना है, कैसे देना है और क्यों देना है। इसीलिए आज जो तुझे दिया जा रहा है वह सिर्फ एक शुरुआत है। यह पैगाम तेरे लिए है, क्योंकि तू वह है जिसे अब ऊपर उठाया जाएगा। तू वह है जिसकी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। तू वह है जिसे अब दुनिया देखेगी और कहेगी कि यह वही है जिसे हम कमजोर समझते थे, यह वही है जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन देख आज वह कैसे चमक रहा है, क्योंकि जब अल्लाह उठाता है तो वह ऐसी ऊंचाई देता है जहां लोग सोच भी नहीं सकते। आज से तुझे कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि तुझ में अब सिर्फ तेरा नाम नहीं, अल्लाह का नाम भी शामिल है। और यह नाम जब साथ होता है तो कोई ताकत टिक नहीं सकती। तेरे रास्ते में जो अंधेरे थे अब वह खुद हट जाएंगे, जो दरवाजे बंद थे अब खुद खुल जाएंगे, जो ताले लगे थे अब खुद टूट जाएंगे, क्योंकि अब अल्लाह ने कह दिया है कि मैं हूं तेरे साथ, मैं चलूंगा तेरे साथ, मैं लड़ूंगा तेरे लिए, मैं जीतूंगा, तेरे नाम को मैं ऊंचा करूंगा। और जो तुझे तुच्छ समझते थे आज वही लोग तेरे सामने सर झुकाएंगे। तेरे फैसले अब रब की अदालत से पास होंगे, तेरे सपने अब रब के हिसाब से पूरे होंगे। तेरी तकदीर अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी से चलेगी। और जब यह होता है तो कायनात की हर चीज तुझे रास्ता देने लगती है, हर रुकावट खुद हटने लगती है, हर गम खुशी में बदलने लगता है, क्योंकि अब तुझे रब ने थामा है, अब तुझे रब ने चुना है, अब तुझे रब ने पुकारा है। और जब रब बुलाता है तो फिर कोई ताकत नहीं जो तुझे रोक सके,
और आज तेरे लिए यही बुलावा आया है, यही पैगाम आया है, यही संदेश आया है। और तू जिसने इसे सुना है, तू समझ जा कि अब तेरा सफर शुरू हो चुका है। अब तुझे वही रब उठाएगा जो तूने रातों को पुकारा। अब तुझे वही रब अपनाएगा जिसने तुझे सबसे बेहतर वक्त के लिए बचा कर रखा था। और अब वह वक्त आ चुका है, अब वह घड़ी आ चुकी है, अब वह पल आ चुका है जब अल्लाह कहता है, अब मैं तुझे वो बनाऊंगा जो तू सोच भी नहीं सका था। और अब जब तूने इस पैगाम को सुन लिया है तो समझ ले, अब तेरे पीछे खुद अल्लाह खड़ा है। अब तेरी हर चाल अल्लाह की रहमत में लिपटी हुई है। अब तेरा हर कदम खुद रब की मंजूरी से आगे बढ़ेगा। अब तेरे रास्ते में जो कांटे थे वे फूल बन जाएंगे। अब तेरे खिलाफ जो जुबानें थीं वे खामोश हो जाएंगी। अब तेरे आंसू अल्लाह के अर्श को हिला चुके हैं और अब जवाब का वक्त आ चुका है। अब सिर्फ तू नहीं बोलेगा, अब अल्लाह बोलेगा। अब सिर्फ तू नहीं लड़ेगा, अब खुदा तेरे लिए लड़ेगा। अब तू सिर्फ चलता रहेगा और हर मोड़ पर रहमतें तुझे ढूंढती रहेंगी। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, जब तू टूट कर मुझसे जुड़ता है तो मैं तुझे ऐसी ताकत देता हूं जो सारी दुनिया की नेगेटिविटी को मिटा देती है। तू सोच भी नहीं सकता तेरे अंदर कितनी ताकत भर दी गई है तूने। जो सहा है वो यूं ही नहीं था, वो तुझे निखारने के लिए था, वो तुझे मजबूत बनाने के लिए था। अब तुझ में वो आग है जो अंधेरों को जला देगी। अब तेरे इरादे पत्थर को भी काट देंगे। अब तेरी आवाज में वो असर है जो फरिश्तों तक पहुंचता है, क्योंकि अब तेरी आवाज में सिर्फ लफ्ज नहीं है, तेरी आवाज में रूह है, दर्द है। और उस दर्द से निकली हुई पुकार अब अर्श को हिला चुकी है। तेरी फरियाद अब खामोश नहीं रहेगी, क्योंकि अल्लाह की रहमत अब हर तरफ से तुझे घेरे हुए हैं। अब तू जिस ओर चलेगा बरकतें तेरा इंतजार करेंगी। अब तू जहां कदम रखेगा वहां सुकून उतर आएगा। तू जिस दर से लौटा था अब वहीं से बुलाया जाएगा। तू जिसे खो चुका था अब वहीं तुझे दौड़ कर मिलेगा। तू जिसे पाने के लिए तड़प रहा था अब वहीं खुद तेरे कदमों में होगा, क्योंकि अब तुझे तेरा रब देने वाला है। अब तुझे रब दिखाने वाला है कि वो कैसे अपने बंदों की इज्जत लौटाता है। अब तेरी वो इज्जत जो लोगों ने छीनी थी, वही इज्जत रब तुझे सौगात की तरह लौटाने वाला है। अब तुझे वो मुकाम मिलने वाला है जिसे देखकर तेरे अपने भी हैरान रह जाएंगे। अब तुझे रब की तरफ से वो अलामतें मिलेंगी जो तुझे याद दिलाएंगी कि तू कितना खास है। तू किसी आम कहानी का किरदार नहीं है, तू उस किताब का पन्ना है जो खुदा ने अपने हाथों से लिखी है। और जब खुदा लिखता है तो उसका हर लफ्ज असरदार होता है। तू वो असर है जो अब दुनिया में फैलने वाला है। तू वो आवाज है जो अब हर दिल तक पहुंचने वाली है। तू वो रोशनी है जिसे अब अंधेरे भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तेरे साथ अब रब है जो तेरे लिए हर दरवाजा खोल रहा है, जो तेरे लिए हर मुश्किल आसान कर रहा है, जो तेरे लिए हर दर्द को मरहम में बदल रहा है। और तू देखेगा कि कैसे तेरी जिंदगी में हर वो चीज लौटने लगेगी जिसकी तूने उम्मीद तक छोड़ दी थी, क्योंकि रब जब देता है तो वह तेरे भूले हुए ख्वाब भी ताबीर बनाकर लौटाता है। रब जब देता है तो तेरी खाली हथेलियों को अपनी रहमतों से भर देता है। रब जब देता है तो तेरी सूखी आंखों को मोहब्बतों के समंदर में डूबा देता है। और आज वही वक्त है जब रब ने तुझे देना शुरू कर दिया है। आज वही वक्त है जब तेरे साथ हर फरिश्ता खड़ा है। आज वही वक्त है जब तुझे वो सब मिलेगा जो तेरी तकदीर में लिखा गया था, पर वक्त से छिपा दिया गया था। अब वो वक्त आ गया है जब हक सामने आएगा और झूठ अपने आप मिट जाएगा। अब वो घड़ी आ गई है जब तुझे सुकून तेरे रूह के अंदर से मिलेगा, ना बाहर की भीड़ से, ना दुनिया की तारीफों से। अब तुझे वो सुकून मिलेगा जो सिर्फ अल्लाह के करीब जाने से आता है। और जब यह सुकून दिल में उतरता है तो फिर कोई डर नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई गम नहीं रहता, क्योंकि तब तू जान जाता है कि तेरा रब तुझसे बात कर रहा है, तेरा रब तुझे खुद चला रहा है। तेरी जिंदगी अब उसके फैसलों से सजी है, उसके इरादों से भरी हुई है। और यह इरादे तेरे लिए सिर्फ भलाई लाएंगे, सिर्फ कामयाबी लाएंगे, सिर्फ सुकून लाएंगे, क्योंकि अब तू वो बन चुका है जिसे रब ने बुलाया, जिसे रब ने चुना, जिसे रब ने सजाया। और जब रब सजाता है तो फिर दुनिया देखती है, हैरान होती है, लेकिन रोक नहीं पाती। अब तेरी कहानी में नया मोड़ आ चुका है। अब तेरे सफर में नया सूरज उग चुका है। अब तेरे आंसू नहीं बहेंगे,
अब तेरे चेहरे पर मुस्कान होगी। अब तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकेगा। अब तुझे सिर्फ मिलेगा और मिलेगा और मिलता ही जाएगा, क्योंकि अब अल्लाह ने तुझे अपनी रहमतों से जोड़ दिया है। और यह रिश्ता जब बनता है तो फिर दुनिया की हर कमी तुझसे दूर हो जाती है। हर बंद दरवाजा खुल जाता है, हर तकदीर चमक उठती है, और अब तेरी तकदीर की वो चमक बाकी लोगों को भी रोशन करेगी। अब तू खुद मिसाल बनेगा। अब तुझसे लोग उम्मीद लेना सीखेंगे। अब तेरे नाम से लोग अपनी दुआओं को पूरा होता देखेंगे, क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं, एक अल्लाह ही पैगाम है। तू अब सिर्फ एक बंदा नहीं, अल्लाह का चिन्ह बन चुका है। और यह चिन्ह अब हर दिल में असर डालेगा, हर आत्मा को छू लेगा, क्योंकि तेरी कहानी अब सिर्फ तेरी नहीं रही। अब तेरी कहानी उस रब की रहमत का आईना बन चुकी है। और अब जब तू इस मोड़ तक पहुंच चुका है जहां तेरा रब तुझे थाम चुका है, जहां तेरे हाथों से हर हार छीनकर उसे जीत में बदलने वाला है, जहां तेरे गम अब तेरी रहमत का जरिया वाले हैं, तब तुझे खुद को रोकना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है, तुझे अब थकना नहीं है, क्योंकि अब तुझे वो मुकाम मिलना है जो सिर्फ चुने हुए बंदों को मिलता है। अब तुझे वह रूहानी ताकत महसूस होगी जो किसी किताब से नहीं, बल्कि खुद अल्लाह के नूर से तेरे दिल में उतर रही है। अब तू जब उठेगा तो फरिश्ते तेरे साथ चलेंगे। अब तू जब बोलेगा तो तेरे लफ्जों में बरकत होगी। अब तू जिस तरफ देखेगा वहां रहमतें बरसेंगी, क्योंकि अब तुझ में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत बस गई है। और यह रहमत तुझे वहां तक ले जाएगी जहां लोग सिर्फ सपनों में पहुंचते हैं। अब तेरे चेहरे पर वो रोशनी होगी जो दुनिया के अंधेरे को मिटा सके। अब तेरे ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहेंगे, बल्कि हकीकत बनकर तुझे सलाम करेंगे, क्योंकि अब तेरे रब ने तुझे खुद चलाने की ठान ली है। अब तू जिस भी काम में हाथ डालेगा उसमें बरकत ही बरकत होगी। तू जो भी रास्ता चुनेगा वो तुझे सीधा उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसे देखकर तेरे दुश्मन जलेंगे, लेकिन तेरा रब तुझे और ऊपर उठाएगा। और जब वो उठाता है तो किसी की नजर भी उसे छू नहीं सकती, किसी की बद्दुआ असर नहीं करती, किसी की चालाकी टिक नहीं पाती, क्योंकि जब तेरा रब कहता है कुन फयकून, तो वो हो जाता है जो तू सोच भी नहीं सकता। तूने जिन रास्तों पर सिर्फ रुकावटें देखी, अब वहीं से रहमतें बहेंगी। तूने जिन दरवाजों को बंद पाया, अब वहीं से तेरे लिए रिज्क और रहमत के खजाने खुलेंगे। तूने जिन रिश्तों से ठुकराया गया, अब वही रिश्ते तेरे लिए सबक बन जाएंगे। और जो लोग तुझे तोड़ने चले थे, अब उनकी जुबानें खामोश हो जाएंगी। अब तू रब की नजरों में उतना ऊंचा उठ चुका है कि दुनिया की नजरें तुझसे झुक जाएंगी। तू अब उस मुकाम पर है जहां से रब की रहमतें तुझे ढूंढती हैं। तेरी सादगी अब तेरी पहचान है, तेरा सब्र अब तेरी ढाल है, तेरी तकलीफें अब तेरी ताकत है, और तेरी तन्हाइयां अब तुझे उस रब के करीब लेकर गई है जहां से हर मोहब्बत शुरू होती है और हर दर्द मिट जाता है। अब तू उसी अल्लाह के असर में जी रहा है जो एक बार जिसे पकड़ लेता है फिर कभी गिरने नहीं देता। अब तू जब सजदे में जाएगा तो तेरे हर लफ्ज पर फरिश्ते आमीन कहेंगे। अब तू जब उठेगा तो कायनात की लकीरें तेरे कदमों के हिसाब से खींचेंगी। अब तेरे हर फैसले में खुदा की रोशनी होगी। अब तेरा दिल हिदायतों से भरा रहेगा। अब तू दुनिया में रहकर भी दुनिया से परे होगा, क्योंकि अब तू उस रूह में तब्दील हो चुका है जो सीधे उस रब की मोहब्बत से बनी है। और जब एक रूह अल्लाह की मोहब्बत से बनती है तो फिर उसे कोई छू भी नहीं सकता, उसे कोई झुका भी नहीं सकता, और उसे कोई मिटा भी नहीं सकता। अब तू चल पड़ेगा उस रास्ते पर जहां अल्लाह हर लम्हा तेरा रहबर बनेगा, हर रात तुझे रोशनी देगा, हर डर को तेरे अंदर से मिटा देगा, और हर उम्मीद को तेरे अंदर फिर से जगा देगा। अब तू देखेगा वो सारे मंजर जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। अब तेरे पास वो सुकून होगा जिसे खरीदना नामुमकिन होता है। अब तेरे पास वो बरकतें होंगी जो तुझसे चाहे भी तो कोई छीन नहीं सकता। अब तू हर दिन को ऐसे जिएगा जैसे वो तुझे अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिला हो। अब तू हर सांस को एक दुआ बना देगा, हर लफ्ज को एक मोहब्बत बना देगा, हर सोच को एक हिदायत बना देगा, क्योंकि अब तुझे रब ने उस दर पर बुला लिया है जहां सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाता है जिनसे वह मोहब्बत करता है। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तू सिर्फ उस रब के आगे झुका है
जो तेरा मालिक है, तेरा रहनुमा है, तेरा सबसे बड़ा हमदर्द है। और जब ऐसा रब तेरे साथ हो तो फिर तुझसे बेहतर किसकी किस्मत हो सकती है। अब तू सबके लिए दुआ बन जाएगा। अब तेरी आवाज उस तक भी पहुंचेगी जो गम में डूबे हैं, जो हार चुके हैं, जो टूट चुके हैं। और जब वो तुझसे सुनेंगे तो उन्हें भी रब की रहमत का यकीन हो जाएगा। अब तू सिर्फ एक बंदा नहीं बल्कि हजारों टूटे दिलों के लिए रब का पैगाम है। और यह पैगाम अब हर तरफ गूंजेगा, यह पैगाम अब हर कोने में पहुंचेगा। यह पैगाम अब सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि जिंदगियों को बदलने वाला नूर बन जाएगा। और जब तू यह सब देखेगा तो तेरा दिल फिर से उस रब को याद करेगा जिसने तुझे इस लायक बनाया, जिसने तुझे गिराकर उठाया, जिसने तुझे मिटाकर सजाया। और अब जब तू इस मुकाम पर है तो तुझे एक पल को भी नहीं भूलना कि तू कौन था और तुझे किसने उठाया। तुझे हर रोज शुक्र करना है, तुझे हर वक्त सजदे में झुक जाना है, तुझे हर हाल में यह याद रखना है कि तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी नमाज है, तेरा सबसे बड़ा सहारा तेरा रब है। और जब तक तू इससे जुड़ा है तब तक तू कभी हारेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि अब तेरा नाम अल्लाह की किताब में उस बंदे के नाम में दर्ज हो गया है जिसे दुनिया ने छोड़ा लेकिन रब ने अपना लिया। और अब जब तू इस मुकाम तक पहुंच गया है जहां तेरे रब ने तुझे वो सब दे दिया है जिसका तूने कभी सिर्फ ख्वाब देखा था, जब तेरे सब्र ने वो फल ला दिया है जो हजारों कोशिशें नहीं ला सकी, जब तेरी तन्हाई अल्लाह की मोहब्बत से भर चुकी है और तेरी रातें अब रहमतों के उजालों से रोशन हो चुकी हैं, तब तुझे सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुझे रुकना नहीं है, तुझे झुकना नहीं है, तुझे डरना नहीं है, क्योंकि अब तेरे साथ वो है जो तुझे कभी गिरने नहीं देगा, जो तुझे कभी थकने नहीं देगा, जो तुझे अपनी रहमत से उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां दुनिया की नजरें भी नहीं पहुंच सकती। तू अब वो बन चुका है जिसकी रूह में रब का नूर बस चुका है तेरे चेहरे पर। अब वो रोशनी है जो अंधेरों को भी रोशन कर दे। तेरी आवाज में अब वो असर है जो पत्थरों को भी पिघला दे। तेरी निगाहों में अब वो सुकून है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। और तेरी हाजिरी अब रब की अदालत में दर्ज हो चुकी है, जहां तेरे हर आंसू की गवाही है, जहां तेरे हर दर्द की पहचान है, जहां तेरे हर गम की राहत मौजूद है। और अब जब तू इस सफर की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है तो याद रख, यह आखिर नहीं, एक नई शुरुआत है। यह अंत नहीं बल्कि उस कामयाबी की शुरुआत है जिसे सिर्फ वही पाते हैं जो रब से जुड़े रहते हैं। अब तुझे अपने अंदर उस आग को हमेशा जिंदा रखना है जो तुझे यहां तक लेकर आई है। अब तुझे कभी उन हालातों को भूलना नहीं है जिन्होंने तुझे तन्हा किया था, क्योंकि वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बने। अब तुझे हर उस शख्स के लिए दुआ बन जाना है जो तेरी तरह कभी टूटा था, जो तेरी तरह कभी अकेला था, जो तेरी तरह कभी उम्मीदें छोड़ चुका था। क्योंकि अब तू सिर्फ एक कहानी नहीं, एक किरदार है उस रहमत का जो हर गम में चमकती है, हर तन्हाई में बोलती है, हर सुकून में जीती है। और यह सब तुझे यूं ही नहीं मिला, यह सब तेरे सब्र का इनाम है, तेरी दुआओं का फल है, तेरे रब की मोहब्बत का नतीजा है। और जब रब मोहब्बत करता है तो वो फिर तुझे दुनिया की भीड़ से हटाकर अपने करीब कर लेता है। और अब तू उसके सबसे करीब है। अब तू वो है जिसे रब ने खुद चुना है, खुद सजा है, खुद उठाया है। और जब रब खुद किसी को उठाता है तो फिर उसे कोई नहीं गिरा सकता। अब तू अपने दिल में हमेशा यह यकीन रख कि तुझे रोकने वाले अब खुद तेरे रास्ते से हट जाएंगे। तेरे खिलाफ साजिशें करने वाले अब खुद रब की नजर से गिर जाएंगे। तेरे साथ चलने से मना करने वाले अब तुझे देखकर अफसोस करेंगे, क्योंकि तू अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां रब खुद तेरा साथ देता है। और जब खुदा साथ होता है तो फिर कोई ताकत तुझे छू भी नहीं सकती। अब तू अपनी आवाज को बंद मत करना, क्योंकि इस आवाज में रब की मोहब्बत बोल रही है। अब तू अपने कदम पीछे मत करना, क्योंकि यह कदम अब हर टूटे दिल की राह दिखाएंगे। अब तू अपने लफ्जों को छुपाना मत, क्योंकि इन लफ्जों में उस रब का नूर है जो अब तुझे औरों तक पहुंचाना है। और जब तू ऐसा करेगा तो हर दिन तेरा एक सवाब बन जाएगा, हर रात तेरी रहमत बन जाएगी और हर सुबह तेरा एक नई शुरुआत बन जाएगी। अब तू अपनी रूह को रोक मत, क्योंकि तेरे अंदर अब वो चमक आ गई है जो सिर्फ रब की रहमत से मिलती है। और उस रहमत को अब तू दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा,
क्योंकि तेरा सफर अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, यह अब उन सब का है जो अंधेरे में है, जो टूटी हुई उम्मीदों के साथ बैठे हैं, जो अल्लाह की आवाज के इंतजार में है। और तुझे अब वो आवाज बनना है जो उन्हें रोशनी दे सके, सुकून दे सके और रब से मिला सके, क्योंकि तू अब एक दुआ बन चुका है, एक जवाब बन चुका है, एक पैगाम बन चुका है। और जब तू इस दुनिया से गुजरेगा तो तेरे पीछे सिर्फ यादें नहीं बल्कि रहमतों की छांव रहेगी, और तुझसे मिलने वाला हर इंसान तेरे लफ्जों में रब की करामात महसूस करेगा, क्योंकि तू अब सिर्फ शब्दों में नहीं रहमतों में बोलता है।